اور بلٹن کے سٹارٹ میں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو بتائیں گے۔ فیصل آباد کے برانڈڈ گارمنٹ سٹور کے لیڈیز ٹرائل روم میں کیمرہ لگانے کے کیس میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیمرہ لگانے والا صرف کاکروک تھا یا کھیل سب کی ملی بھگت سے کھیلا گیا؟ کیمرہ نصب ہونے کی شکایت کرنے پر سٹور کے مینیجر نے مبینہ طور پر کسٹمر سے موبائل فون چھین لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ثبوت کے طور پر بنائی گئی ویڈیوز اور تصاویر مٹا دی گئیں، ڈرا دھمکا کر معافی مانگنے پر مجبور کیا، شکایت کی تحقیقات کے بجائے سٹور سے نکال دیا۔ پورے معاملے میں یہ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے انہی صاحب سے جن کا نام ہے نعمان ظفر صاحب، ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کہیے گا نعمان صاحب، یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے ٹرائل روم کے اندر؟ میں اصل سر تقریباً 1 بجے اپنی فیملی کے ساتھ گیا لیوائز برانڈ پر۔ تو جب ان کے ہم سیکنڈ فلور پہ گئے، وہ تھا لیڈیز اور جینٹس پلس فلور ہے، لیڈیز کی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ ورائٹیز کپڑوں اور جینٹس کی بھی۔ تو جب ہمیں وہاں کوئی چیز پسند نہ آئی تو مینیجر صاحب نے ہمیں 2-3 دفعہ جب انسسٹ کیا بار بار کہ باجی آپ یہ ٹرائی کر لیں، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ تو اسی دوران میں ایک تو ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ وہاں اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں کیوں دوسری چیز ٹرائی کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اسی دوران میں مجھے تھوڑی سی سرگوشیاں نظر آئی کہ کوئی آواز جس طرح تیز تیز کسی کی چلنے کی آ رہی ہے جو پیچھے ٹرائی روم تھے ان کی طرف۔ مزید برآں کہ جب لیڈیز گئے وہاں پہ ٹرائی روم میں تو میں نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کہ آپ ذرا آبزرو کر کے جائیے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی آ جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ ٹرائی روم میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 باکسز پڑے تھے اور 2 باکسز میں سے ایک باکسز میں سے لینس نظر آ رہا تھا۔ تو جو ہی انہوں نے ان کی لینس پر نظر پڑی، انہوں نے فوراً مجھے اطلاع کی۔ میں جلدی اسی وقت گیا، جا کے میں نے دیکھا تو بالکل ویسا ہی ایک لینس نظر آ رہا تھا جس طرح بالکل کیمرے کا ہوتا ہے۔ تو میں نے فوراً اس کی تصاویر لے لی، میں نے اس کی تصاویر لے لی اور اس کے بعد میں نے مینیجر صاحب کو بلایا جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان ادھر ہے نظر ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا کر رکھا ہے یہاں پہ؟ تو مجھے وہ پکڑ کر سائڈ پہ لے گئے، کہتے چھوڑے کا کام نہیں ہے۔ تو اسی دوران میں نے ایز ایویڈنس ان کی اپنی اور ان لینزز کی بھی پک بنا لی۔ جب میں نے ایک سیلفی لے لی تو اس دوران 15 پہ میں نے کال ڈائل کی، وہ ابھی 1.5-2 سیکنڈ کی چلی ہی تھی کہ مینیجر صاحب نے مجھ سے سیل فون چھین لیا۔ سیل فون چھیننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے وہ تصاویر جو تھی وہ ڈیل کی۔ جب ڈیل کر لی اتنے میں جنہوں نے وہ کوئی کیمرہ پیچھے سیٹ کیا تھا، پیچھے سے کوئی بھائی صاحب آ گئے، انہوں نے وہ کیمرہ وغیرہ بھی نکال لیا اور اس کے بعد مجھے کہتے کہ دکھائیں کہاں کیمرہ ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے میرے ساتھ کافی ہاتھا پائی کی، بڑی تلخ کلامی کی، بہت گالم گلوچ، اس طرح بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اوپر سے مجھے کہتے کہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، گارڈ کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ مجبوراً مجھے وہاں ان سے معافی مانگ کر سوری کر کے وہاں سے جانا پڑا۔ وہ میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے کہا غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں ان سے جان چھڑا کے باہر نکلا۔ اس کے بعد فوراً ہی میں نے پولیس سے رابطہ کیا، پولیس کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس پہنچ آئی، پولیس نے بڑی بر وقت اچھی انہوں نے اس وقت کارروائی کی۔ سارا کچھ انہوں نے جیسے میں نے بتایا انہوں نے ویسے ہی جا کے پوچھ گچھ کی، لیکن اس وقت تو سارے اس بات سے مکر گیا کہ ہم نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی پولیس نے میرا وہ ڈیل کیا، جو انہوں نے ڈیل کیا تھا ڈیٹا وہ ریکور کیا، تو پولیس کو پاس شواہدات ملے کہ واقعی ہی یہ لینس ہے۔ جب مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کسی نے کسی بات پہ یقین ہی نہ کیا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے وہ باکسز بھی اس وقت ٹرائی روم سے ہٹا دیے تھے جو اس وقت موجود پڑے تھے۔ کہتے یہاں دیکھ لیں کوئی باکسز نہیں ہے، باقی کے ٹرائی روم بھی چیک کر لیں۔ حالانکہ اس وقت باقی کے ٹرائی روم بھی لاک تھے، جو بھی تھے۔ اس وقت میں نے انہیں بھی کھولنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ان کے اندر کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب پولیس بعد میں آئی تو اس وقت وہ ٹرائی روم بھی کھلے ہوئے تھے۔ لیکن واقعے کے دوران ایک ہی ٹرائی روم کھلا تھا جس میں وہ باکس پڑے تھے اور کیمرہ سیٹ کیا ہوا تھا، باقی کے ٹرائی روم لاک تھے۔ تو اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی، انہوں نے ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پولیس نے دیکھا کہ CCTV کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں CCTV کی جو بھی ہے تصاویر، اگر آپ لوگوں نے ہاتھ تھپائی نہیں کی، سارا کچھ نہیں ہوا تو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کافی دقت پیش آئی پولیس کو، کیونکہ انہوں نے ان کے پاسورڈ وغیرہ چینج کر دیے۔ کافی دیر لگی یہ چیزیں دیکھنے میں، کافی دیر وہ ڈھونڈتے رہے، کہتے پاسورڈ چینج ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کافی بہانے بازی کرنے کے بعد جب پولیس نے تھوڑی ان پر زبردستی کی،
जोर डाला तो मजबूरन पुलिस ने अपने तरीके से वो खुलवा लिए, सारे CCTV देखी कि किसी तरह कौन उसमें वो बॉक्स सेट कर रहा था, सारा कुछ पुलिस के सामने आ गया। और वो मैनेजर साहब भी जब मुझ से उन्होंने सेल फोन छीना, जो उन्होंने मुझसे वो पिक्स वगैरह डिलीट की, सारा कुछ किया, वो सारा कुछ पुलिस ने वहीं देख लिया और वो उसी वक्त बरामद हो गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ठीक है। इसी खबर पर बात करेंगे फैसलाबाद के नुमाइंदा जियो न्यूज इरफान उल्लाह से। इरफान उल्लाह, जिस तरह से गारमेंट स्टोर की इंतजामिया ने शिकायत करने वाले नुमान जैसे कि हमारे साथ मौजूद है, ने डराया धमकाया, जिस तरह उसका मोबाइल फोन छीन कर उसमें से सबूत की वीडियोस डिलीट की, क्या आपको नहीं लगता कि सारा स्टोर ही इसमें मिला हुआ था? ये काम एक खाकरोब का तो नहीं लगता बज़ाहिर सिर्फ। जी बिल्कुल, अगर हम SOPs देखें और जो कंज्यूमर राइट्स एक्ट है उसको हम देखें तो बिल्कुल जो स्टोर की इंतजामिया थी, जब उसको शिकायत मिली तो उन्हें फौरी तौर पर इस शिकायत पर बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और जो नुमान साहब थे इनकी पूरी मदद करनी चाहिए थी और जो जिसके खिलाफ ये शिकायत कर रहे थे उसके खिलाफ जो कार्रवाई आज खुद उनको स्टोर को करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्ट हुआ कि स्टोर की इंतजामिया जो थी वो भी बिल्कुल नुमान साहब को डराने में, हरासा करने में शामिल हो गई और एंड तक कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है इस मामले को डरा धमका कर खामोश कर दिया जाए। और अब जबकि ये तहकीकात हो रही हैं और तफ्तीश हो रही है, उस खाक रूप से उसने आज इंकशाफ भी कर दिया कि एक खातून की वो वीडियो अभी तक जो किया है, एक खातून का उसने कहा कि मैं वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैं डिलीट कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मजीद तफ्तीश जारी है। अभी मजीद शायद इंकशाफात जो हैं वो भी इसमें सामने आ सकते हैं। जी इरफानुल्लाह हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर नुमान साहब हमारे साथी हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे। नुमान साहब, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया आपने, एक चीज़ को एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आइडेंटिफाई किया, आपकी मदद करनी चाहिए थी अगर वो मुलव्विस नहीं थे इसमें तो, लेकिन उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया जिससे लग ऐसा रहा है। आप क्या समझते हैं कि पूरा स्टोर ही मुलव्विस है, खासतौर पर मैनेजर भी इसमें मुलव्विस है? मुझे तो उस वक्त बजाय यही लगा कि इसमें तो सारे मुलव्विस हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो मैनेजर अब वो कह रहे हैं कि मुलव्विस नहीं है, ये है वो है, अगर जैसे मैंने उसे कंप्लेन की थी उसे चाहिए तक मेरे सामने वो जो भी मवाद था कैमरा वो उसे निकालता, जो भी उसका जिम्मेदार था उसे ढूंढता और उसी पर कार्रवाई करती। उल्टा उसने पर्दापोशी करने की कोशिश की और अब इसमें पता नहीं, अब तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, तो इसमें कौन कौन से और लोग मुलव्विस हैं, ये कब से ऐसा काम कर रहे हैं। अब तो मैं हर ब्रांड पे डाउट हो रहा है कि हम पता नहीं कब से कितनी माओ बहने जाती हैं और ये कब से ऐसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ अब तो पूरे पाकिस्तान में हर ब्रांड की चेकिंग की जाए और जितने भी ये ट्राई रूम होते हैं, कोई नीचे से खुला होता है, कोई ऊपर से खुला होता है, इन सबको बंद कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नुमान जफर साहब हमारे साथ थे जो कि कंप्लेनेंट हैं और उन्होंने ही आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन उसके बाद उनसे रवैया स्टोर मालकान का अच्छा नहीं रहा और हमारे नुमाइंदे इरफान उल्लाह भी हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर तो दौड़ी है, न सिर्फ जो बिजनेस करते हैं लोग गारमेंट्स का, वो भी ये कह रहे हैं कि उनका बिजनेस भी इससे मुतासर हो रहा है और शहरी तो यकीनी तौर पर ये कह ही रहे हैं कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हर बासर कैदी की तरह शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई जिन्ना अस्पताल मुंतकिल हो गया है। कुछ रोज पहले जब शाहरुख जतोई को जमानत पर रिहा किया गया था तो उस वक्त भी अस्पताल में था, लेकिन रिहा होते ही बिल्कुल भला चंगा होकर घर चला गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जैसे ही उसे गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया तो वहां बमुश्किल 2 दिन गुजारे और एक बार फिर जिन्ना अस्पताल के स्पेशल वार्ड मुंतकली करा ली। और बताया जा रहा है कि जवां साल शाहरुख जतोई ने कमर की तकलीफ का इलाज जो है वो उसका जारी है। इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया। अमीन, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं इस सारे मामले पर आपके पास, ये पहले बताइए। जी सर, बिल्कुल। शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को एक मरतबा फिर जिन्ना अस्पताल के स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जो जेल के जो डॉक्टर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शाहरुख जतोई का जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, उन्हें कमर की तकलीफ है, लिहाजा उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस रिक्वेस्ट पे शाहरुख जतोई को गुज़िश्ता रात जो है वो जिन्ना अस्पताल सेंट्रल जेल कराची से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर स्पेशल वार्ड में उन्हें रखा गया है और डॉक्टर गुलाम रसूल ज़राए के मुताबिक उनकी देखभाल कर रहे हैं। जो उनके डॉक्टर हैं वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले भी शाहजेब कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम है शाहरुख जतोई, उन्होंने एक लंबा अरसा जो है वो जेल में गुजारने के बजाय आराम से जिन्ना अस्पताल में गुजारा था। इसकी कोई वजूहात नहीं बताई गई थी। जब वो
जब उन्हें पिछली दफा जिना अस्पताल में दाखिल कराया गया था, और एक मरतबा फिर जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का नोटिस लिया गया और मुल्ज़मान की जमानतें जो है वो मनसूख होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इसी खबर पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर से कि बासर कैदियों की बीमारियां कितनी असली होती हैं। डोगर साहब, वीडियो में जैसे कि देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में पेशी के वक्त शाहरुख जतोई बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, जबकि जेल जाते ही उसकी कमर में दर्द हो गया है। कितनी असली होती हैं बासर कैदियों की बीमारियां? बिल्कुल, ये बासर कैदियों की जो बीमारियां हैं ये आज नहीं, बहुत सालों से ही इसी तरीके से जाली होती हैं, और इसमें डॉक्टरों की एक बड़ी माफिया हैं जो इसमें मुलव्वस होती है। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे इनको 8 तारीख को रात को जो है वो रात गए जो है वो एमरजेंसी लाया गया था जना अस्पताल की, और बहुत तशवीशनाक हालत डॉक्टरों ने लिखी थी, क्योंकि महकमा दाखिला सिंध को इन्फॉर्म करना होता है इस तरह अस्पताल मुंतकली से पहले, लेकिन एक एमरजेंसी इन्होंने डिक्लेयर करके उनको फ़ोन पर बता के जो है इनको अस्पताल लाए। वहाँ डॉक्टर भी बड़े शायद मुंतज़र थे इनकी इस बीमारी का, और उनको आनन फानन जो है वो ट्रीटमेंट करके मज़ीद टेस्ट, और उसके लिए इनको जना अस्पताल की जो स्पेशल वार्ड वफाकी गवर्नमेंट मुलाजमीन का ये वार्ड है जहां इनको मुंतकिल किया गया, और उसमें इनको अभी टेस्ट होंगे इनके, और वही कमरा नंबर 5 दिया गया है जहां से जब रिहा हुए थे उसी वक्त दंदनाते हुए वहां से वापस चले गए थे, और उसके बाद वहां आए हैं। तो शर्जील इनाम मेमन, इनाम अकबर जो कि करप्शन केस के बड़े मरकजी मुलज़म हैं, वो ऑलरेडी इस अस्पताल में खामोशी से कई हफ्तों से वहाँ पर वो हैं, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, और वहाँ पर अब ये तकरीबन 8 तादाद हो गई है इन बासर कैदियों की जना अस्पताल के फेडरल एम्प्लॉइज़ वार्ड के अंदर। जी, तो कैदियों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनकी कमर में दर्द है, और ख़ास तौर पर ये जो नीलम कमर दर्द है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तमाम कैदियों में। बस जैसे ही जेल भेजा जाता है कमर दर्द हो जाता है। अब ये इस मामले को देखना होगा। बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से। नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में दिया जाने वाला धरना आज खत्म कर दिया गया है। पश्तून लॉन्ग मार्च शुरा ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर धरना खत्म करने का ऐलान किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वही चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, कहिएगा, इस इम्कान का तो दूर दूर तक कोई वो नहीं है ना, जो पहले खबर आई थी जराए से कि मामला तय पा रहे हैं, इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका? नहीं जी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो पश्तून कौम है उन्होंने ये साबित किया है कि अगर पुरअमन अंदाज में भी अपना धरना देकर मुतालबात जो जायज़ हैं उनको मनवाया जा सकता है। और वज़ीर आज़म के मुशीर जो हैं इंजीनियर अमीर मकाम, उन्होंने आज तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से एक यकीन दहानी जो है वो इन पश्तून कबाइल को करवाई है, जो 1 फरवरी से यहाँ पुरअमन अंदाज में धरना दे रहे थे, और उसमें तमाम जो उनके 5 मुतालबात थे, जिनमें सबसे पहला मुतालबा जो राव अनवार की और टीम के साथ गिरफ्तारी का था, जो नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल में जिनका मुबैना तौर पर नाम लिया जा रहा है। उसके अलावा जो दीगर 4 मुतालबात थे, इन तमाम मुतालबात पर वज़ीर आज़म की तरफ से अमल दरामद की यकीन दहानी तहरीरी तौर पर कराई इंजीनियर मीर मुकाम ने, जिसके बाद ये धरना जो है खत्म कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, अपडेट कर रहे थे आप। और अहम खबर यह कि इख्तलाफात का शिकार MQM को एक और धचका लगा है। सैयद सरदार अहमद ने राब्ता कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अपडेट्स के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे खाबर खान से। खाबर, मामलात मजीद उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान में जो बहादुराबाद का सेटअप है उसमें मामला जो बड़े उलझते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल सैयद सरदार अहमद जो कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और MPA भी हैं, इस वक्त उनका ये कहना है कि अब वो राब्ता कमेटी के साथ काम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब जो तर्जुमान MQM है अमीनुल हक, वो ये कहते हैं कि जी सैयद सरदार अहमद से अब भी वो राब्ते में है, लेकिन सैयद सरदार अहमद का ये कहना है कि वो इस राब्ता कमेटी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट अभी ये हुई है कि जो PSP में रहनुमा चले गए थे सलमान बलोच MQM के MNA, वो एक बार फिर PIB कॉलोनी पहुंचे हैं और उनकी शमूलियत का ऐलान जो है बाकायदा अब जनरल का इजलास हुआ फारूक सत्तार खिताब करेंगे। बहुत तेजी से पेशरफ्त हो रही है। सैयद सरदार अहमद ने राब्ता कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अपडेट के लिए शुक्रिया खाबर खान। और इससे पहले MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने राब्ता कमेटी के तमाम इजलास और फैसले गैर आईनी करार दे दिए। आज शो कॉज नोटिस भेजने का ऐलान किया, बोले अब आईनी जंग होगी। आज राब्ता कमेटी का भेजा गया खत मुस्तरद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख देंगे। इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया और कहा कि उनके पास वो डंडा नहीं जो बानी MQM के पास था।
MQM की रहनुमा नसरीन जलील बहादुराबाद पार्टी दफ्तर पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फारूक सत्तार की जिद की वजह से हजारों कारकुनान परेशान हैं। उनका कहना था कि अब पहले की तरह वन मैन शो नहीं चलेगा, हर फैसला राब्ता कमेटी की मुशावरत से होगा। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग किसी चीज़ पे तस्फिया नहीं कर पा रहे और फारूक सत्तार भाई अड़े हुए तसूरी की शमूलियत पे और राब्ता कमेटी में शमूलियत और डिप्टी कन्वीनरशिप और सेनेटरशिप, तो ये समझ में ना आने वाली बात है। तो कोशिश अभी भी कर रहे हैं और बाहर सूरत हमारे सरबराह हैं, पार्टी को लीड उनको करना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर इतने सारे लोगों की एक राय है किसी शख्स के बारे में तो वो उस पर क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं। अगर मुझे भी वो अगर कहते हैं कि नसरीन जलील नहीं चाहिए और बकिया लोग उनसे एग्री करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहें कि नहीं मुझे ये तो शख्स ज़रूर ही चाहिए तो क्यों, क्या खुसूसियत है। और अब कुछ बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इश्ताल अंगेज तकरीर के 27 मुकदमात की समाअत शुरू हो चुकी है। 6 से ज़ायद मुकदमात में चालान पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत का 6 तफ्तीशी अफसरान को जेल भेजने का हुक्म सामने आया है। स्टील टाउन, मलीर कैंट, बिन कासिम, सुखन और सचल थाने के तफ्तीशी अफसरान शामिल हैं। तफ्तीशी अफसरान ने अदालत से दरख्वास्त की है कि आखिरी मौका दिया जाए, आइंदा समाअत पर हतमी चालान पेश करेंगे। और रहीम यार खान में 6 साला बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बच्चे का कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी मां निकली। साबिक शोहर के इनकार करने की सजा कम से 6 साल के बच्चे को भुगतना पड़ी। अपनी ही मां बेटे की कातिल बन गई। 5 जनवरी को बच्चे की तशद्दुदज़दा लाश रहीम यार खान के नवाई इलाके मियां टाउन में एक घर के सहन से मिली थी। इब्तिदाई तौर पर मां ने ही खुद नामालूम अफराद के खिलाफ C डिवीजन थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो वो खुद ही शक के दायरे में आ गई और सब सच उगल दिया। मैं माफी मांगनी है, अल्लाह पाक भी मैनू माफ कर देवे। वल्लाह अल्लाह मैनू नहीं पता कि मेरा बच्चा मेरे हाथों क्या में शहीद हुआ है। SSP शाहनवाज चाचल का कहना है कि मुलजिमा नसीमा का साबिक शोहर से एक बेटा था और वो साबिक शोहर से दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकार करने पर बेटे को कत्ल कर दिया। और अब खबर इंतजार कत्ल केस के हवाले से। इस केस में तहकीकात आगे नहीं बढ़ पा रही। मालूम हुआ है कि कत्ल के केस के मुल्जिमान जो तमाम के तमाम पुलिस के एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकार हैं, उनसे नरमी बरतने से इनकार पर वकील सरकार का तबादला कर दिया गया है। ये मामला क्या है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया। अमीन, कहिएगा, केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है और अब तक चालान क्यों पेश नहीं किया गया? जी बिल्कुल, केस में पुलिस की जानिब से ताखिरी हरबे तो इस्तेमाल किए ही जा रहे थे। इसी वजह से केस का चालान और पुलिस फाइल आज भी पेश नहीं की गई और वहीं पर ही केस की सरकार की जानिब से पैरवी करने वाले जो सरकारी वकील थे अब्दुल रज़ाक गुज्जर, उनका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी 6 नंबर से तबादला करके 9 नंबर उन्हें भेज दिया गया है। प्रोसिक्यूशन जराये के मुताबिक मुल्जमान के साथ हाथ हौला रखने का कहा गया था, जिसे इनकार पर उनका तबादला किया गया है। इंतजार कत्ल केस में एंटी का 8 पुलिस एहलकार जेल में है, जबकि एक मुल्जिम जमानत पर रिहा है। कई सवालात खड़े कर दिए गए हैं। इस तरह जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है उससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अमीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एक बार फिर मरियम नवाज की क़यादत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि वो इतने भी सियासी यतीम नहीं कि अपने से जूनियर्स को सर और मैडम कहते फिरें। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.